हरि बोल। Everybody settle? हम सबके लिए बहुत चिकी टाइम है, आपके लिए मतलब मेरे लिए तो मैं सबसे पहले आपको अभी आप हमने सब अच्छा खाना खाया, छोले और पुलाव, टीचर और वंडरफुल डिजाइन एक रेसिपी सिखा रही हूँ आपको। ठीक, first I read it in English and you will whatever Hindi words I put in. Okay, recite for a happy married life. Okay, then I will begin my talk. So recite for a happy married life. Listen very carefully. Take a large quantity of cheerfulness. यानी कि उत्साह। That is simmer. हम गैस पे कुछ भी रखते हैं तो पहले गैस पे रखते हैं फिर बॉईल, right? So let it simmer without stopping. Put in a brimming vessel full of kindness. यानी अनुकंपा। Take a large quantity of dal, let it simmer without stopping. Put in a brimming vessel full of anupama, kindness, add a full measure of thoughtfulness. यानी कि अच्छा विचारात्मक भाव। Mix into this happening a tablespoon of sympathy, यानी कि सहानुभूति। Flavor with an essence of charity, यानी कि दान। Stir well together. इस तरह से मिलाना। Carefully strain off any particle of selfishness, यानी कि स्वार्थ। Serve this dish with a sauce of love, यानी कि प्रेम। तो हम आगे के सेशन पे उसके बारे में दान के बारे में, patience, tolerance, all these things, communication, all these things we talk about. And another small saying: true love does not come by finding the perfect person, but by learning to see the imperfect person perfectly. And it is a Indian true love does not come by finding the perfect person. सच्चा प्यार एक उत्तम परफेक्ट पर्सन से आने के मेरे जिंदगी में आने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। बट कैसा आ जाता है? बट बाय सीइंग द इम्परफेक्शंस इन अ इम्परफेक्ट पर्सन परफेक्टली। हम सबका पार्टनर नोबडी इज परफेक्ट, राइट? आवर हस्बैंड, आवर स्पाउसेस, whether it is a husband or a wife, nobody is perfect, never is perfection. But जब हम वो इम्परफेक्शन देख के समझ के, जैसे अभी माता जी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, हर आदमी का नेचर अलग है, हर एक आदमी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर एक आदमी का गुण या गाँव में जैसे अलग अलग गुण, थोड़े में तत्व गुण ज्यादा है, गुण ज्यादा है, मिक्सचर of so many things acting on a person, both husband as well as wife. So nobody is perfect. तो ये इम्परफेक्शन में थोड़ा कुछ अच्छाई देखना और उसमें प्रेम करना सीखना, that is the beauty, right? I found it very nice, so I thought of sharing it. Another thing, love is about accepting someone for who they are. And maybe what is prem? We say na, in a husband wife marriage, love is very important in a marriage. So love is when you accept the person for who he is, without trying to change the person. Generally, normal human tendency, all is that we want to be the way we want, right? तो हमारा पति और हमारी पत्नी हमको जैसे चाहिए वैसे बात करना चाहिए, but वो कभी होता नहीं है, like because of whatever matter we experience. That is the most difficult thing. So you give the other person the space.
उनको थोड़ा उनका स्पेस देना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. Love is about accepting someone for who they are. So we हम बात करेंगे duties of husband and duties of wife. Roles and responsibilities यानी जिम्मेदारी. शादी में हर स्पाउस हर पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? We try to understand. Okay? अभी ऑफकोर्स हस्बैंड का भी यहाँ पे मैंने लिया है. Most of us are wives. Many of us are all of us are wives. Many of us are wives. Children also and married girls. So हस्बैंड की ब्रीफली हम देखते हैं. देन विल गो टू ड्यूटीज ऑफ वाइफ. सबसे पहली ड्यूटी हस्बैंड की पति की ये समझना कि मेरी पत्नी मुझे भक्ति में मेरा सहयोग करेगी. टू अंडरस्टैंड माय वाइफ इज हेल्पिंग मी इन माय सेवा. मुझे मदद कर रही है. एंड टू बी अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. शास्त्रों में हम इनके जितने जितने वैष्णवों के मेंशन है हमारे शास्त्र में, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जितने भी उत्तम अधिकारी वैष्णव है, हम सब जन अपने अर्धांगिनियों को किसी की उपेक्षा या अवहेलना नहीं की है. दे हैव ऑल किसी का अपमान नहीं किया है. राइट. ये सब वैष्णव अपने पत्नियों का पत्नियों के प्रति प्रेम से, आदर से और सम्मान से व्यवहार करते हैं. They are showing us by their example how to treat your wives or how to treat your husbands with respect, with love, with with सम्मान, प्रेम, with love. Now the second responsibility is that पति अपने पत्नी का हर ढंग से रक्षा करता है. यानी कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली. शारीरिक रीति, आध्यात्मिक रीति, मानसिक स्थिति से और भावनात्मक इमोशनल. All four ways a husband is supposed to protect his wife. In Srimad Bhagavatam, 5th canto, Rishabdev tells his 100 sons. The beautiful words is there. Beautiful words is there. Guru na satya, Prajano na sasya, Pita na sasya, Janani na sasya, Daivam na satya, Navatishya satya, Namo jale jala samopet. जो व्यक्ति अपने आश्रितों को बार बार जन्म मरण के मार्ग से मुक्ति नहीं दिलाता, वही नहीं दिला सकता, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या पूज्य देवता नहीं बनना चाहिए. यानी कि husband is not capable of delivering his wife and his children from the cycle of birth and death. अगर कोई भी पति अपने पत्नी और बच्चों को अपने जन्म मृत्यु जलावादी के सर्कल से छुड़ा नहीं सकता है, then he has no responsibility, he has no right to be a husband. पति को समझना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे इंद्रिय सुख का उद्देश्य नहीं. She is not an object of my gratification. जैसे कि he knows that he is a child of God, right? भगवान का अच्छा है. सिमिलरली उसको समझना चाहिए कि मेरी पत्नी भी भगवान की बच्ची है. भगवान ने उसको मेरे हवाले सौंप दिया है ताकि मैं उसकी अच्छी तरह से अच्छा. This is a very important responsibility of the husband. And of course, the course of the time, पत्नी गर्भवती हो जाती है, उनको बच्ची हो जाती है, तो it is the duty of the husband to take proper care of his wife. उसको अच्छी तरह से प्रेम देना, संभालना, उसको सहयोग करना, उसकी सहाय करना. That is the important duty. Next important duty पति का, he should be
faithful, he should be devoted, and he should be beautiful. यानी कि faithful यानी मुझे पिक्चर में जाती है अच्छा तो beautiful है faithful means वफादार he should be वफादार ईमानदार विश्वसनीय right second he should be devoted यानी he should be devoted भक्त होना चाहिए कैसा भक्त समर्पित निष्ठावान very dedicated तत्पर and lastly he should be beautiful यानी कि he should be कर्तव्यनिष्ठ he should be aware of what his duties are अपनी कर्तव्य क्या है इसका उसको महसूस करना अभी हम देखते हैं रामायण में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है रामायण इज सच अ वंडरफुल स्क्रिप्चर सीता का अपहरण जब भी होता है राम starts lamenting he starts crying becomes like a madman तो पागल आदमी जैसे बन जाता है सब कुछ है भारत से जानवरों से अरे मैंने देखा है कि किस तरह से गई है becomes like a madman without separation में goes crazy now राम को समझना चाहिए कि this is राम is not an ordinary person right he is मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत में कृष्ण प्रभुपाद हमको कहते हैं कि ये पूरे जो एपिसोड है इससे हमको विकल्प होते फर्स्ट इज दैट हमको समझना चाहिए कि अगर वी आर नॉट केपेबल हस्बैंड आर नॉट केपेबल ऑफ शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शोल्डरिंग डिफिकल्टी यानी कि अगर हस्बैंड को लगता है कि मैं कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकूंगा इन लाइफ देन यू शुड नॉट गेट मैरिड सेकंड अगर शादी okay, to get married, then you should be capable of handling responsibilities, handling difficulties, and taking care of your wife, right? Taking care of your wife spiritually, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक all these ways you should be able to take. Only then you should get married. Otherwise, remain a bachelor. This is what we learn from Ramayana, from the behavior of Lord Ram. That's what Srila Prabhupada explains to us. Now, भगवान ने माता जी explained so beautifully today. स्त्री को एक प्रकार का देख दिया है, right? She is being made in a particular way. शारीरिकता, मानसिकता और भावनात्मक रूप से. She is made in a certain way. इनको ऐसे उत्पन्न किया है कि she has to understand her role. The way she is built, she has to understand how she is made, so that she can play her role. Now, what are the different roles a wife, a lady plays? Daughter, a wife. After a daughter, she becomes a wife. After that, she becomes sister, sister-in-law, mother, daughter-in-law. So many roles she plays, right? So if she understands that she is being made in a certain way, भगवान ने मुझे इस तरह से बनाया है ताकि मैं अलग अलग रोल्स जो मेरे हैं तो मैं ये सब रोल्स अच्छी तरह से निभा सकूं तभी हमारी सोसाइटी यानी हमारे समाज में हार्मनी समानता शांति harmony you understood what I meant then only there can be harmony in society there can be peace in society shanti because then a woman behaves properly right but when women behave improperly there is a lot of turmoil society में turmoil so a woman has to understand her role very nicely and then only there can be now let us come to duties of a wife the ardhangini she is known as an ardhangini a wife पत्नी को अर्धांगिनी कहलाती है इसका अर्थ क्या है कि वो अपने पति का आधा शरीर है वाइफ इज कंसीडर्ड टू बी द हाफ पार्ट ऑफ हर हस्बैंड राइट पति अपने पत्नी के बिना अधूरा है हर धार्मिक रीति रिवाज में हर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार इस भावना से दोनों
मिलके भक्ति करना है। किसी कभी राम पिता को यहाँ पे भेजता है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजता है, अमरनाथ में भेजता है, आफ्टर रावण। तो then he wants to do the यज्ञ, हम यज्ञ आज से नहीं नहीं, तो यज्ञ करना पिता नहीं है, आश्रम में So then what he does, it is very important बाद में कथन नहीं चाहिए, तो he creates a deity of Sita. So in हर रीति रिवाज में अर्धांगिनी जमा। तो इस तरह से अगर पत्नी अपने पति पर निर्भर होके पति द्वारा निर्देशित रहेगी तो वो understand the role as a wife. Yes, I'm dependent on my husband to some extent. Right? Then she can remain happy. But अगर वो mental state जैसी नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, I'm independent. मेरे हस्बैंड से I'm independent, मैं अपना सब कुछ मैं कर सकती हूँ, तो then वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। This is the first one, right? First one क्या है? पत्नी is the अर्धांगिनी। Second, पत्नी अपने गृहस्थ आश्रम को सुरक्षित रखती है। She keeps the husband safe. Now this is a very important aspect for a wife to understand. जैसे हस्बैंड अपने पत्नी का रक्षा करता है, इसी तरह इन a certain way the पत्नी also अपने पति की रक्षा करती है। ऐसे वो जब हमको पुरंजन महाराज के एपिसोड में हमको सिखाते हैं। जो जब ये पति का शरीर एक किले के समान से कंपेयर किया जाता है, बॉडी कंपेयर टू फोर्ट किला, इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है दैट इज कंपेयर टू डेकाइट, यानी कि प्लंडर, डेकाइट अकेला प्लंडर करते हैं, इंद्रियां काम करने में हमारे शरीर को प्लंडर करते हैं। पत्नी का रोल क्या है? शी इज द सेनापति। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सेनापति? राजा का सेनापति क्या करता है? शत्रुओं को भगा देता है। तो जैसे सेनापति किले का रक्षा करता है, उसी तरह पत्नी अपने पति के कॉन्शियस यानी कि भावनाओं यानी इंद्रियों का बाहरी आकर्षण से रक्षा करती है। समझते हैं? Your husband is constantly bombarded by temptations. You understand? How many don't understand English at all? Some English words समझ सकते हैं। प्रलोभन प्रलोभन से उसका बचाव करती है। बिकॉज आज की दुनिया में जब भी बाहर कोई भी आदमी जाता है, इट इज so for husband, very difficult for husband to maintain his balance. But when he knows that he's got a very stable wife at home, then he feels good. He doesn't get disturbed, he doesn't get agitated. नहीं तो पति बाहर के आकर्षणों के प्रति मोहित होके गलत रास्ते पे जा सकता है। अब हर पत्नी अपनी पति का रक्षा करती है, थोड़ा एक्सप्लेन किया, बट कैसे, हाउ, दिस इज इम्पोर्टेंट। बिना चुनौती, नॉट चैलेंजिंग, बिना अहंकार, बल्कि अपने स्नेह से, अपनी शुद्धता से, यानी अपनी सुचिता या संयम से और अपनी सेवा भाव से she keeps her husband under her control, right? इस तरह से वो गृहस्थ आश्रम को सुरक्षित करती है। आपको समझ में आया? what is the Prabhupada trying to tell us? देखिए, जब पति गलत रास्ते पे जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो it is the duty of a wife
अच्छी सलाह देते हैं हम्म, ये पर्टिकुलर जो आप जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। जैसे हम देखते हैं रावण कितना रॉन्ग, इट वाज अ रॉन्ग पाथ राइट, बट मंदोदरी was such a balanced lady ना, अच्छी डेमोक्रेसी थी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया रावण को समझाने, बट अनफॉर्चुनेटली रावण was very stubborn, उन्होंने सुना नहीं, एंड देन दैट वाज द कॉज ऑफ हिज डूम। गांधारी, तारा, गांधी was doing all sorts of wrong things, joining with Sukhdeep Bhai। तो तारा told him कि आप जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं कर रहे हैं, वापस आ जाओ, सुधरो, बट they were very stubborn and सुना नहीं। तो उस सलाह ऐसा मेंशन कर दिया नम्र भाव से, अच्छी भावनाओं, उनकी भावनाओं को चोट न देकर। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स, मोस्ट ऑफ द वाइफ्स, उनको समझता नहीं है कैसे चला देना, बिकम वेरी एरोगेंट और बिकम वेरी डिफेंसिव, और लोग इस बहाना इस तरह से जब भी हम सलाह देते हैं तो ज्यादा पर्सन डजंट एक्सेप्ट इट इन द राइट वे, बिकॉज द हस्बैंड हैज नॉट एक्सपीरियंस, ही मेड अ सर्टेन वे, right? So it's in a very diplomatic way, try to change, generally we can become, otherwise it will be very difficult। अगर पत्नी से कहने पर भी पति उसके सलाहों का ध्यान नहीं देता या हठपूर्वक उपेक्षा करता है उसकी सलाहों का, तो उससे अपने कर्मों का फल अकेला भुगतना पड़ता है। जैसे हस्बैंड का इतना अच्छा कर्म है, वरना के लिए बिकम 50% उसको मिलता है, बट अगर हस्बैंड पूरे कर्म करता है ना, वेदों के हिसाब से अलग कुछ करता है, then the husband wife is not responsible, she doesn't get the bad karma of the husband। Okay, the next most important seva, sorry, important duty of a patni is that अपने पति का सेवा करना। कैसे सेवा करना चाहिए? निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, सच्चे मन से, भक्ति भाव से और शुद्धता। Now रामायण में we have the episode of अनुसुईया, जब सीता राम लक्ष्मण सीता जैसे वन में जाते हैं प्रकृति की तरफ, तो they stop at the ashram of अत्रि and अनुसुईया, तो वो अपने स्वागत करते हैं और they spend the night there, and next day morning अनुसुईया सीता को अपने पास बिठाती है, and then she gives her a lot of advice, which Sita in a very humble way accepts. This is an important quality, how to take advice. About husband and wife level, something gives advice, नम्र भावना से सुनना, सीधा इसकी जीवन। नगरत्तो मनोस्तोवा, शुभावो, शुभावा, यदि शुभा, दाशम नीनाम प्रियो भर्ता, दाशम लोका महोदया। ऊंचे ग्रह उन स्त्रियों के राह देख रहे हैं, the higher planetary system awaits those ladies जिनको उनके पत्नी सॉरी जिनको उनके पति प्रिय है। तो पति कैसे हैं, क्यों ना वो शहर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, श्रीमंत हैं या गरीब है, पति कैसे भी हो, अगर पत्नी उनकी अच्छी तरह से सेवा करे तो the wife can attain higher planetary system just by serving the husband nicely। तात्पर्य, पति कौन से भी हालत में रहे, फॉर एग्जाम्पल पति का मान पत्नी का मान होता है, होना चाहिए, पति का सुख पत्नी का सुख होना चाहिए। That Anusuya herself did that and she is teaching Sita। तो यही है गृहस्थ आश्रम की सफलता, Anusuya is teaching सीता देवी। And of course सीता देवी tells Anusuya ये शिक्षा जो आप मुझे दे रहे हैं, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही कहा था और मेरी शादी के टाइम पे भी सलाह देके मुझे अधिकार किया था। She was very grateful to Anusuya। Then the second episode that the Prabhupada talks about is Draupadi and Satyabhama। सत्यभामा और द्रौपदी जब मिलते हैं
Gopi and wives of Krishna. They meet. तो कभी सत्यभामा देखती है कि द्रौपदी is able to handle 5 husbands. So she is a little amazed. She is confused. मुझे एक husband मैनेज करने में इतनी कठिनाई है. How is Draupadi managing 5 husbands? Right? So she takes an appointment with Draupadi. द्रौपदी के साथ बैठती है, वो द्रौपदी से पूछताछ करती है. बोलते हैं आपके 5 हस्बैंड बलवान है, हैंडसम है, राइट? सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि आपके 5 बलवान और हैंडसम पति कैसे इसने आपके आज्ञाकारी किए, राइट? कैसे मुझे बताइए ताकि मैं भी कृष्ण की उसी तरह से मैं बर्ताव करूं ताकि वो भी मेरे मेरे तक की आज्ञाकारी हो जाए. तो द्रौपदी ने वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन शी गिव्स सत्यभामा. वो कहती है पति हर पत्नी का भगवान मास्टर यानी आश्रय है. हर पत्नी को अपना भगवान हर पत्नी को अपना पति भगवान जैसा मास्टर है, आश्रय है, उसको दूसरा और कोई सहारा नहीं. अगर ऐसा भाव है तो वो कैसे अपने पति को दुख में देख सकती है. She is in that consciousness. Yes, I'm only sheltered with my husband. So how can she see her husband unhappy? Right? तो दूसरे अपने husband को नहीं देखती. मैं मेरे पतियों की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं करती. कौन बोलते हैं, किसी को बोलते हैं who says to whom? मैं मेरे पतियों की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं करती. मैं कभी मेरी सासू के खिलाफ या उनके बारे में कुछ बुरा बोलती नहीं हूँ और उनके बारे में और चर्चा वो टॉपिक है और उनके बारे में मैं बुरा बोलती भी नहीं हूँ और बुरा सोचती भी नहीं हूँ. सत्यभामा और क्या है बहुत है और द्रौपदी से मैं मेरा घमंड दूर रखती हूँ, हिंसा नहीं करती. उनका और उनके बाकी पत्नियों का प्रेम पूर्वक इंतजार करती हूँ. We have only one husband. I mean, she had only one. Only one, right? तो मैं उनकी और उनकी पत्नियों का प्रेम पूर्वक इंतजार करती हूँ. Wait upon them with devotion. बिना ईर्ष्या, बिना जेलसी, प्रेम भरे हृदय से मैं उनकी सेवा करती हूँ. Of course, whatever we are reading the scriptures, that is some thought का उत्तर है. I mean, let's be honest. But the Prabhupada, what is the topic? Right? It might be not 100% karna is difficult, but he's telling us what the real standard as per the Vedic, as per the Vedic Sanskrit. But if you understand it, that is when and realize it, that is the beginning, right? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सही ढंग से बैठती हूँ, चलती हूँ, पर पुरुष के प्रति कभी देखती नहीं. इतनी भी सुंदर तो कितना भी सुंदर श्रीमंत देव गंधर्व कोई भी हो, मैं कभी दूसरे पुरुष के प्रति देखती नहीं. जब तक मेरे पति यानी फैमिली मेंबर्स सर्वेंट खाते नहीं, मैं खाती नहीं. Very high temperature. मैं लास्ट सोती हूँ. I'm the last to sleep, last to drop the main gate.
You can see everything is all right. And see, that's the duty of both sides. You all do that. जब मेरा पतिदेव बाहर जाते हैं तो मेरा रहना एकदम सिंपल रहता है. Most wives, all wives should dress nicely when their husbands are away. यहाँ पे प्रॉब्लम telling us जब मेरे पति बाहर गाँव जाते हैं युद्ध में या किसी को मिलने के लिए कृष्ण को मिलने के लिए I need to be I need to dress well. I need to dress very simply. I don't ambition with it. When my husband come back, then I dress nicely. I become very attractive. जब वे तब करते हैं तो मैं भी तब करती हूँ. उनकी जितनी ऑस्टेरिटीज है मैं उनके ऑस्टेरिटीज में सहभागी होती हूँ. मैं मेरे पतिदेव का हमेशा भला सोचती हूँ. मेरी सासू माँ ने जब मुझे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, तो ये सब इंस्ट्रक्शन वो मैं ध्यानपूर्वक पालन करती हूँ. So these are some of the instructions which Draupadi gives Satyabhama. And Satyabhama goes leads for that way enlightenment. The next duty for wife, विश्व पितामह महाभारत के कहते हैं कि पति को दान, पूजा, तपस्या, उपवास वगैरह करना पड़ता है धर्म के तौर पर. राइट, they should do all these things. They should do charity, they should do तपस्या, उपवास वगैरह वगैरह करना पड़ता है because it's required for him to be religious. धर्म के तौर पर लेकिन पत्नी का एक ही धर्म है. She has to do only one thing. She doesn't have to do austerity. She doesn't have to do great puja. She doesn't have to do big दान. वो सब पत्नी को नहीं करना पड़ता है. What she has to do एक ही काम, पति का भावना पूर्वक सेवा करना. अगर पत्नी भक्ति नहीं कर रही है, उसको इनके पत्नी भक्त नहीं है, husband is a devotee, the wife is not a devotee, right? Even if she serves her husband devotedly, then what happens to her? She may not be a devotee, but ऊंचे planets का प्राप्ति उसको हो सकता है. That's what see this picture. Not only ladies, just by serving their husband, they have attained higher planets. और अगर पत्नी भक्त है और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती है तो कितने अगले फायदे हो सकते हैं. क्या कहना है? जस्ट इमेजिन भक्त नहीं है, पति का सेवा करती है तो ऊंचे प्लैनेट्स. If the husband is a devotee, what to talk of the benefits of it. Then of course, I'm coming from a level. घर को साफ सुथरा रखना, हमेशा खुश रहना, वेल ड्रेस रहना, घर होशियारी से चलाना, घर खर्चा बजट के अंदर रखना, पैसों की बचत करना, all these things most of us are aware of. This is another duty of a wife to stay within the means of the husband. अपना पति कितना कमाता है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी to mold her life around that. खर्चा to avoid live within the means. अगर पति इरिटेबल हो जाए, कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए तो होता ही है. तो अच्छी तरह से वो सिचुएशन संभाल लेना. दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ वाइफ. पत्नी को घर का वातावरण कृष्ण भावनामृत बना के दोनों पति पत्नी गुरु के आज्ञा का सेवा करके रहना. That is another duty of the wife to ensure that she along with her husband follow the instructions of Guru and live a Krishna conscious simple life. And then this picture we have so many examples. Most prominent example is the Devavati and Sarda movie, which of course we will touch upon later also. Devavati was the princess. She was a Rajkanya. She was a very opulent one. क्या ऐसा बोले ना पाँव कभी
जमीन पर नहीं रखे, वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय फादर, बट her father कर्दम मुनि है, sorry our father is husband is कर्दम मुनि, Swayambhuva Manu understood her his daughter, exactly daughter. He knew that she was very spiritually inclined, and it is the duty of all fathers to select the right groom for her, for his daughter, right? अपने बच्ची के लिए अच्छा पति ढूंढना हर पिताजी का जिम्मेदारी होता है. So very thoughtfully he selected कर्दम मुनि. Actually it was भगवान का भी इसमें lot of praise there in that, because he actually कर्दम मुनि also, and he also made the dream of Swayambhuva Manu. Then he sort of orchestrated the whole thing. And then Swayambhuva Manu married his daughter to Kardam Muni. Now who's Kardam Muni? He lived in the forest, one man. Nothing, pushing, nothing. Under a tree. And only thing I had was the puja karne. Nothing that he up karta. But Devati gave him to her father because she understood her father really loved her and had her spiritual well-being in heart. So she stayed there. Came, got married, वहाँ पे आई, and then she served Kardam Muni in such a way. She understood exactly the mind of Kardam Muni. She knew that okay, now my husband will get up, now he's coming to sit here. Before he came inside, the last will be there. Then he knew what he would want. Asan patra will be there. Then he knew flowers लगेगा, flowers तैयार रखी, सब जैसे उसको चाहिए. So without him telling her anything, she understood his mind and proactively she followed. Proactively. स्वयं से समझ के अपना पति का मन समझ के उसने उनकी सेवा की. So that is a very prominent example in our Shastra. Many more are there, but I will not go time. Now, पति को शक्ति कैसे मिलती है? ब्रह्मचारी. पत्नी को कैसे शक्ति मिलती है? पतिव्रता, चैस्टिटी, पतिव्रता से, शुद्धता से, सेवा भाव से. That's how she gets her purity. And finally, Prabhupada makes a very, very prolific statement. He says, shyness is a gift of nature to the fair sex. Srimad Bhagavatam, Vedic and Purana, 10 chapter 16 verse 2. Shyness है नहीं, लज्जा, ये एक भगवान का गिफ्ट है, योग है. Prabhupada very very upset when he feels independent of women. पति जब अपने पत्नी में पतिव्रता यानी शाइनस, लज्जापन देखता है, सरलता देखता है, इनोसेंस, निरपराधता देखता है, इत्यादि गुण पति देखते हैं अपने पत्नी में, तो he becomes, तो वो इजीली पत्नी को आदर देता है. हस्बैंड he is always following to the wife. It becomes natural for the husband. So they have to demand it. It becomes very easy for the husband to respect, to become protective and udar towards such a wife. Understand? When these qualities are there in a wife, automatically the husband becomes like 6 months step towards his wife. Right? नहीं तो क्या हो जाता है? If you scratch my back, I scratch yours. That's how normally we see today. मेरा इसलिए करो मैं तेरा और तुम behave to me, I will do to you. That's how today we see unfortunately so many problems in different homes. So now I will end with one word, which is devotee and Kardam. How devotee serves her husband Kardam. How she serves in 4 ways. Vishramena. Vishramena, Gauravena, Dhamena cha, Sauravena, Vacha Madhurena. यानी Vishramena with intimacy, Atmiyata, Nanishata, right? Which is required in a marriage, which mother takes Gauravena, with reverence, respect, Adar,
Damena. Damena यानी controlling herself in a present misunderstanding. अगर misunderstanding है वैसे मैंने बोला पर नीचे by controlling herself, not getting angry, not getting agitated, right? By controlling herself. And Saudena Bacha Madhuraya, always desiring good for her husband and speaking sweetly. Bacha Madhuraya, which we will be talking later on. Always desiring good for her husband and speaking sweetly. Now this is the last, I read it in English, let's understand. Or I will take down my English. Srila Prabhupada Tathperya में भी कहते हैं, create principles based on psychological differences between man and woman, which basically Mataji explained to us in the beginning. Lunch के पहले, सभी बात करेंगे. ये principles based on मनोविज्ञान, differences between man and woman. तो ये जो प्रिंसिपल है, जैसे जो माताजी ने पहले ही बताया था कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो मनोविज्ञान में फर्क है उसके ऊपर आधारित है. As constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to wife. ये शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि पुरुष जो है हमेशा अपने आप को सुपीरियर या श्रेष्ठ मानता है. And a woman, as bodily constituted, is naturally inferior to her husband. तो वह शारीरिक परिस्थिति से ऐसा है कि जो स्त्री है वो पुरुष से निम्न स्तर पे ऐसा समझती है. Srila Prabhupada warned that intimacy, atmiyata, must not be turned into familiarity that breeds contempt. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो आत्मीयता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम एक दूसरे की घृणा करना शुरू करते हैं. Therefore, understanding the natural superiority complex of man, balancing between intimacy and respect is the key to unlock the husband's heart. श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि किस तरह से एक पुरुष या अपने पति का जो हृदय है उसको खोलने का जो की या चाबी ऐसा है कि इस चीज को बैलेंस करना, कि समझना है कि उनका जो मानसिकता क्या है, श्रेष्ठ जो सोचने का मानसिकता, उसे बैलेंस करना है आत्मीयता से और रिस्पेक्ट यानी आदर से. Proper संतुलन between intimacy, इन दोनों का संतुलन, how much to be intimate and how much to respect, that she has to understand. The husband is a very intimate friend. Therefore, wife must render service just like an intimate friend, and at the same time, she must understand that the husband is superior in position, and thus she must offer him all respect. तो ये समझ के कि जो पति और पत्नी का जो ये संबंध है, जहाँ आत्मीयता है, जैसे बहुत क्लोज जो मित्र है या फ्रेंड है उतना आत्मीयता है, बट एट द सेम टाइम उसी समय पे ये समझना कि पति की जो मैं उनकी श्रेष्ठता पे वो या भूलना नहीं है और उनकी सेवा करना है. तो इस तरह से आदर से जब ये बैलेंस होगा तब दिस कैन बी डन. The next point is the importance of tolerance of the wife, which requires her ability of self-control. सहनशीलता. दूसरी पॉइंट है कि पत्नी को बहुत सहनशील और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल स्वयं पे संयम रहना है. Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it, and thus there will be no misunderstanding. तो पति पत्नी के बीच में जब भी कोई मतभेद भी हो तो ये समझना होगा कि अगर कुछ गलती भी हुई है फिर भी पत्नी को सहनशील होके इस जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में इसे क्लियर कर सकते हैं. क्लियर होगा ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हम ये सहनशीलता से करें. And at last, the sweet words of the wife are taken as great support and inspiration, as a person becomes educated by so many material contacts in outside the world. Therefore, in his home, he must be given by the sweet words. तो ये स्वीट वर्ड्स यानी मीठे बोल, स्वीट वर्ड्स या मीठे बोल, ये बहुत ही बड़ी सपोर्ट, बहुत ही बड़ी चीज है. बिकॉज
जैसे एक मनुष्य बाहर भौतिक जगत में बहुत कुछ चीजों से ग्रसित या थक के जब भी आते हैं बाहर की दुनिया से, तो तभी घर पे जब भी आते हैं तो पत्नी के जो मीठे बोल है ये सबसे बड़ी जो है उनके लिए दवा जैसा है। तो अगर वो नहीं होता तो फिर क्लेश शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो इसके बारे में अगर जो भी प्रश्न है, क्वेरीज है, डाउट्स है, हम उसके लिए समय देंगे, तो आप नोट करके रखिए। अभी के जो कुछ सेशंस के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर या डाउट्स रखेंगे, तो इसमें काफी कुछ डाउट्स हो सकता है प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम्पल्स के हिसाब से, तो वो आप नोट करके रखिए और फिर वो क्वेश्चन पर क्वेरीज और डाउट्स हम। यस, थैंक यू अमृता माता जी फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। और अभी हम मोरजिम के डिवोटीज, आर दे रेडी? So Moorjim devotees can present